गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटे जैसे जानते हैं कि हम लोगों ने ज्योग्राफी का चैप्टर स्टार्ट किया था और ज्योग्राफी के चैप्टर में हम लोगों ने जो कंप्लीट किया यस्टरडे वो हम लोगों ने कंप्लीट किया था अबाउट रिसोर्सेज एंड प्रॉब्लम्स जनरेटेड बाय ओवर यूज ऑफ या ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया था कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स व्हिच आर जनरेटेड बिकॉज ऑफ द ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द रिसोर्सेज। आज जो हम लोगों को कंप्लीट करना है वो सबसे पहले बच्चों पढ़ना है रिसोर्स प्लानिंग। फर्स्ट वी हैव टू कंप्लीट अबाउट द रिसोर्स प्लानिंग एंड देन स्टेप ऑफ रिसोर्स एंड रिसोर्स डेवलपमेंट। तो आज हम लोगों को जो स्टेप स्टार्ट करना है वो रिसोर्स प्लानिंग स्टार्ट करना है बच्चों। रिसोर्सेस प्लानिंग क्या स्टार्ट करना है? रिसोर्सेस प्लानिंग। तो व्हाट इज रिसोर्स प्लानिंग? What is resource planning? If we discuss that what is meaning of the resource planning, we have to discuss that what is the meaning of the resource planning. तो resource planning के बारे में अगर हम बच्चों आज डिस्कस करें तो resource planning is a technique. लिखते चलो आप लोग। resource planning एक टेक्निक होती है। resource planning is a techniques or strategy. resource planning is a techniques or strategy of the proper and judicious यूटिलाइजेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, अगर आप लोगों को डिफाइन करना है, अगर आप लोगों को लिखना है तो लिखते चलो व्हाट इज रिसोर्स प्लानिंग। लिखो रिसोर्स प्लानिंग इज ए टेक्निक और स्ट्रेटेजी ऑफ द प्रॉपर यूजेस एंड जुडिशियस यूटिलाइजेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, दैट इज नोन एज ए रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, क्योंकि as we know that we have not abundant resource, that's why the reason we need the resource planning. तो आप लोग इतना लिखे कि resource planning is a technique or strategy of the proper and judicious utilization of the resources. Resource planning are very much helpful. Resource planning is very much helpful to reduce the wastage and overuse of the natural resources, environment, and keep the environment pollution free and conserve the resources for future use. तो अगर आप लोगों से डिफाइन कराया जाए व्हाट इज रिसोर्स प्लानिंग तो आप लोग रिसोर्स प्लानिंग को लिख सकते हैं बेटा। रिसोर्स प्लानिंग एक स्ट्रेटेजी है। रिसोर्स प्लानिंग इज ए strategy or techniques or strategy of the proper utilization of the natural resources, because natural resources are not abundant. That's why resource planning is very much helpful to reduce the overuse as well as the wastage of the natural resources. As we know that over exploitation of the resources create many types of the pollution, so resource planning reduce the pollutions and conserve the resources for future use. This is the purpose of the resource planning. तो आप लोगों ने लिखा resource planning is a technique or strategy of the proper and judicious uses of the natural resources. ठीक है, resource planning is a technique or strategy of the proper and judicious utilization of the natural resources, because natural resources are not abundant. That's why resource planning is very much helpful to reduce the overuse as well as the wastage of the natural resource. ठीक है, resource planning also help to keep the environment pollution free as well as conserve the resource for future use. आप लोग इसे लिख लीजिएगा प्रॉपर। वीडियो पॉज करके लिख लिया करिए। अगर आप लोग को बाई चांस छूटता है, मैं जल्दी बोल देता हूँ वीडियो बिकॉज यू आर नॉट सिटिंग बिफोर मी, दैट्स व्हाई आई डोंट कीप योर रिस्पॉन्स, आई डो नॉट गेट योर रिस्पॉन्स कि आप लोगों ने लिख लिया कि नहीं लिख लिया। दैट्स व्हाई आई एम सजेस्टिंग यू टू पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन व्हाट एवर आई एम गिविंग यू, व्हाट एवर आई एम डिक्टेटिंग एज राइटिंग मोड। तो वो आप जरूर लिख लीजिएगा कि रिसोर्स प्लानिंग को आप लोग डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट इज रिसोर्स प्लानिंग। तो इट कैन बी आल्सो डिफाइन that resource planning is a technique or strategy of the proper and judicious
uses of the natural resources are not abundant. That's why resource planning is very much helpful to reduce the overuse as well as wastage of the natural resources. And it also keep, because over exploitation of the resources create different types of the pollution. So resource planning keeps the environment neat and clean, clean and pollution free, as well as it also conserve the natural resources for future consumption, for future use. ओके बच्चों, ये आप लोग लिख लीजिए। फिर इसके बाद देखा जाए रिसोर्स प्लानिंग, तो ये बता दिया कि रिसोर्स प्लानिंग ये होती है, लेकिन रिसोर्स प्लानिंग कैसे की जाती है? दिस इज द क्वेश्चन दैट कि हम रिसोर्स प्लानिंग कर कैसे सकते हैं। तो हम रिसोर्स की यूटिलाइज करने का, रिसोर्सेज को कंज्यूम करने की एक प्लान करते हैं और उसको 3 स्टेप में बनाते हैं। रिसोर्स प्लानिंग को हम 3 स्टेप में कंप्लीट करते हैं। तो जिसमें फर्स्ट स्टेज हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट स्टेज, तो रिसोर्स प्लानिंग बेटे के 3 स्टेजेस होते हैं। देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। और कितने स्टेजेस होते हैं? 3 स्टेजेस होते हैं। 3 स्टेजेस। नंबर 1, फर्स्ट स्टेज, रिसोर्स प्लानिंग का पहला स्टेज क्या करते हैं बेटा? फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज में क्या करते हैं? फर्स्ट स्टेज, रिसोर्स प्लानिंग का पहला स्टेज देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट वी सी द फर्स्ट स्टेज ऑफ द रिसोर्स प्लानिंग। तो पहले स्टेज में क्या करते हैं? पहले स्टेज में बेटे हम ये आइडेंटिफाई करते हैं। इट इन्वॉल्व्स, फर्स्ट स्टेज जो होता है इन्वॉल्व्स है, इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन। किस चीज को इन्वॉल्व करता है? आइडेंटिफिकेशन। एंड आइडेंटिफिकेशन किस चीज का? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिसोर्सेज कि इन विच एरिया दे आर प्रेजेंट। तो पहला स्टेज क्या करता है? इट इन्वॉल्व द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज एरिया। दिस इन्वॉल्व द सर्वे। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है? सर्वेइंग ऑफ द नेचुरल रिसोर्स। क्या इन्वॉल्व होता है? सर्वेइंग ऑफ द नेचुरल रिसोर्स, मैपिंग, ठीक है, एक्सेसिबिलिटी, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द रिसोर्सेज। ये पहले स्टेज में मान लेते हैं हमें कोई नेचुरल रिसोर्सेज गेन होता है, तो आप लोग पहले स्टेज में पहले लिख लो व्हाट एवर कि आपको लिखना क्या है। तो फर्स्ट स्टेज आप हेडिंग डालोगे नेचुरल रिसोर्सेज हैज 3, रिसोर्स प्लानिंग हैज 3 स्टेजेस। आप लोग लिखेंगे रिसोर्स प्लानिंग हैज 3 स्टेजेस, जिसमें पहले लिखोगे फर्स्ट स्टेज, दूसरा सेकंड स्टेज, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। ठीक है, थर्ड स्टेज। तो आप पहले स्टेज में लिखेंगे। पहले स्टेज में क्या लिखेंगे? तो आप हेडिंग लोगे रिसोर्स प्लानिंग हैज, पहले लिखेंगे रिसोर्स प्लानिंग हैज 3 स्टेजेस। नंबर फर्स्ट स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज को हेडिंग कर देंगे, थोड़ा डार्क कर देंगे, और फर्स्ट स्टेज में लिखेंगे फर्स्ट स्टेज इन्वॉल्व्स। कौन सी चीज को इन्वॉल्व लगता है? फर्स्ट स्टेज इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज विद एरिया। क्या कौन सा रिसोर्सेज है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज विद एरिया। और क्या करता है कि विद एरिया, कि किस एरिया में हमारे नेचुरल रिसोर्सेज प्रेजेंट है। तो फर्स्ट स्टेजेस इन्वॉल्व द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। और इसमें क्या दिस आल्सो इन्वॉल्व्स क्या? सर्वेइंग, सर्वे किस एरिया में है, कितने एरिया में है। ठीक है, सर्वे किया जाता है इसमें नेचुरल रिसोर्सेज को सर्वे। तो इट इन्वॉल्व्स सर्वेइंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, सर्वेइंग, मैपिंग, मैप बनाने में काम आता है किस एरिया पे है, कितने मैप में है, मैपिंग एंड असेसिंग किस चीज की? असेसिंग ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, असेसिंग ऑफ द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। फर्स्ट स्टेज के ये काम होते हैं। पहले स्टेज में इट इन्वॉल्व्स क्या इन्वॉल्व करता है? इट इन्वॉल्व द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज विद एरिया। इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स क्या इन्वॉल्व करता है? सर्वेइंग, सर्वे करता है, मैपिंग होती है, असेसिंग ऑफ द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। क्वालिटी किस क्वालिटी का और कितनी क्वांटिटी है, कितने अमाउंट में है, ये डिसाइड करता है। तो आप लोग ये लिख लीजिएगा फर्स्ट स्टेज में। सेकेंड स्टेज में क्या देखते हैं? इट इन्वॉल्व द असेसमेंट ऑफ द किस चीज की? डिमांड इन द मार्केट, कि हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेज है इसकी मार्केट में क्या डिमांड है। ठीक है, इट ऑल्सो असेसेस द
डिमांड, तो लिखो सेकेंड स्टेज, डॉट से लिखोगे सेकेंड स्टेज, इट इन्वॉल्व द assessing and demand of the assessment, it involves the assessment of the demand of the natural resources in the market, importance to the इकोनॉमी, कितना इसकी इकोनॉमी होगी, कितना इकोनॉमी में इंपॉर्टेंस है, कैसा है इकोनॉमी, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपिंग द रिसोर्स। ठीक है, सेकेंड स्टेज, तो अब सेकेंड स्टेज में आपको लिखना है, सेकेंड स्टेज इन्वॉल्व द असेसमेंट ऑफ द डिमांड ऑफ द रिसोर्सेज इन द मार्केट, असेसमेंट ऑफ द डिमांड इन द मार्केट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, इंपॉर्टेंस ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी, एंड थर्ड स्टेज इंक्लूड्स करेगा, और सेकेंड स्टेज में और क्या इंक्लूड्स करेगा कि हमारे पास हाई अवेलेबिलिटी ऑफ द टेक्नोलॉजी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रिसोर्स, कि हमारे रिसोर्स के डेवलपमेंट के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी है कि नहीं है, इस बात के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा हमारा सेकेंड स्टेज। तो सेकेंड स्टेज में आपको जो लिखना है, इट सेकेंड स्टेज इन्वॉल्व द असेसमेंट ऑफ द डिमांड, assessment of the demand of in the market of the natural resource, ये लिख रहा है, and the importance to the economy, importance economic कितने importance to the economy, and availability of the technology for the development of the resource, these are the part of the second stage। ये आपको लिखना है सेकंड स्टेज में कि ये सेकंड स्टेज है। फिर थर्ड स्टेज मैंने बताया था कि हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को तीन पार्टों में, तीन लेवल पे प्लान करते हैं। तो थर्ड स्टेज क्या करता है, इट इंक्लूड्स द प्लानिंग, कैसे हमें कंज्यूम करना है, प्लानिंग ऑफ द रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन, क्या किस चीज की प्लानिंग, ऑफ द रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन की प्लानिंग, एंड और क्या करना है, तो थर्ड स्टेज इन्वॉल्व द रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन या प्लानिंग ऑफ द रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन एंड contribution of the growth in the economy of the country and economy of the individual, इस बात पर भी डिपेंड करता है हमारा, ये बात होता है हमारा थर्ड स्टेज की इसके एक्सप्लॉयटेशन के प्लानिंग को हम करते हैं, और एक्सप्लॉयटेशन से इकोनॉमी में कितना प्रॉफिट होगा, दैट इज आल्सो डिसाइडेड, दैट इज क्लियर्ड, दैट इज प्लान इन द थर्ड स्टेज ऑफ द रिसोर्स प्लान। तो बच्चों ये तीन स्टेजेस है, आप लोग हेडिंग डालेंगे फर्स्ट स्टेज, तो फर्स्ट स्टेज में क्या क्या इन्वॉल्व है ये चीज लिखेंगे। सेकंड स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में मैंने आपको बताया कि इट इज इन्वॉल्व द आइडेंटिफिकेशंस ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, मैपिंग, सर्वेइंग, मैपिंग एंड असेसमेंट ऑफ द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द रिसोर्सेज, ये पहले स्टेज में है। सेकंड स्टेज में क्या है, सेकंड स्टेज इन्वॉल्व द मार्केट इंपॉर्टेंस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द टेक्नोलॉजी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रिसोर्सेज, सेकंड स्टेज है। और थर्ड स्टेज में प्लानिंग ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन एंड प्रॉफिट या इकोनॉमिक ग्रोथ में इंपॉर्टेंस, ये थर्ड स्टेज में आपको इंक्लूड करना है। ये तीन स्टेजेस आप इनके नोट्स बनाइए, मैं आपको बोल रहा हूँ प्रॉपर, आप उसको लिखते जाइए, जहां भी आप पीछे हो रहे हैं वीडियो पॉज करिए और वहां लिखिए, क्योंकि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि अब बहुत मुश्किल है कि जो रिमेनिंग जो पार्ट सिलेबस यहाँ पढ़ाया दिया जा रहा है उसको दोबारा पढ़ पाना, क्लास में पढ़ पाना, इट विल बिकम वेरी हार्ड, बिकॉज एज यू नो दैट इन एपेडेमिक कंडीशंस देयर इज नो सर्टेन ऑफ द स्कूल ओपनिंग, कि स्कूल कब ओपन होगा, इट इज डिफिकल्ट एंड एज वेल एज कि जो बच्चे का टाइम, तो ऑलरेडी हमारे पास इतना सिलेबस होएगा उसको पढ़ाएंगे कि ये, इस वजह से आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाते रहिएगा। ओके बच्चों, फिर अब हम लोग आते हैं बेटा कि रिसोर्स के प्लानिंग के तीन स्टेप तो हमने कर लिए, लेकिन हमारे जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है इट इज नॉट इवनली एवरीवेयर। फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर पॉपुलेशन रिसोर्स को छोड़ दिया जाए तो हमारा उत्तर प्रदेश रिसोर्सेज के एंगल से काफी पुअर है, वहीं छत्तीसगढ़ काफी रिच है, राजस्थान भी काफी रिच है, तो रिसोर्स प्लानिंग इवनली नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज ये मैन नहीं करता, नेचर ही करता है, बट नेचुरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्स प्लानिंग इज नॉट इक्वली एवरीवेयर, हर जगह एक जैसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हमने पढ़ा छोटा नागपुर प्लेट्यूज के बारे में, अगर देखें छोटा नागपुर प्लेट्यूज या मिनरल बेल्ट, जिसमें झारखंड, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ के एरिया इंक्लूड है। छोटा नागपुर के एरिया में कौन कौन से एरिया आते हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ये छोटा नागपुर प्लेट्यूज के एरियाज में आते हैं, और यहाँ पर बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज है, खासकर मेटेलिक रिसोर्सेज बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, बट उत्तर प्रदेश में कम है। अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में मेटल बहुत कम अमाउंट में निकलता है। इसी तरीके से डेक्कन प्लेट्यूज में देखा जाए कर्नाटका
तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। यहाँ पर भी देखा जाए तो छोटा नागपुर प्लेट्यू ग्रुप में एक मिनरल खोल, जिसमें छोटा नागपुर प्लेट्यू, जिसमें बेटा छोटा नागपुर प्लेट्यू के बारे में मैं बता दूं कि छोटा नागपुर प्लेट्यू के जो साउथ पार्ट है उसे रोर प्रदेश ऑफ इंडिया कहा जाता है। रोर प्रदेश ऑफ इंडिया, रोर एक बेटा प्लेट्यूज है जो कि जर्मनी में है। इट इज वेरी मच फेमस फॉर द मिनरल्स, अवेलेबिलिटी ऑफ द मिनरल्स, सो दैट्स व्हाई द रीजन छोटा नागपुर प्लेट्यू में भी काफी अमाउंट में मिनरल्स पाए जाते हैं। तो इस वजह से छोटा नागपुर प्लेट्यू को रोर प्रदेश ऑफ इंडिया कहा जाता है, रोर प्लेट्यू ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि इसमें भी काफी अमाउंट में हमारे क्या नाम से मिनरल, मेटेलिक मिनरल्स स्पेशली, चाहे वो हेमेटाइट हो या हेमेटाइट स्पेशली आयरन ओर्स, तो वो बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब है कि हमारे जो रिसोर्सेज है वो हर जगह पर इवेंटली ऑल एक जैसे स्प्रेड नहीं है, कहीं पर कोई रिसोर्सेज ज्यादा है। फॉर एग्जांपल राजस्थान में देखा जाए तो बाक्साइट एंड एज वेल एज जो क्या बोले कापर के प्रोडक्शन में सरिस्का माइंस ऑफ राजस्थान सबसे आगे। पहले मध्य प्रदेश का एक माइंस था तो वो सबसे आगे चलता था, मध्य प्रदेश का माइन, लेकिन इस समय हमारा सरिस्का माइंस ऑफ राजस्थान कापर के प्रोडक्शन में फर्स्ट रैंक पे है। और या सोलर एनर्जी की अवेलेबिलिटी देखा जाए तो हमारा राजस्थान बहुत गुड कंडीशन में है। सेम कंडीशन सोलर एंड विंड एनर्जी की देखा जाए तो गुजरात इज वेरी रिच। तो मेरे कहने का मतलब है कि हमारे रिसोर्सेज सब जगह एक जैसे अवेलेबल नहीं है, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा अनइवनली है, कहीं पर कोई रिसोर्स ज़्यादा है, कहीं पर कोई रिसोर्स ज़्यादा है। तो इस अनइवनलीनेस, ये अनइवनली है डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट्स व्हाई द रीजन इनका कंजप्शन इवनली नहीं हो पाता है। वेयर एवर दे आर वेरी मच, वहाँ से ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड किए जाते हैं और जहाँ पर कम है वहाँ से कम एक्सप्लॉइटेड किए जाते हैं। तो बच्चों, तो ये आप लोगों का क्या रहा, रिसोर्स प्लानिंग रहा। राजस्थान में सोलर एनर्जी बहुत ज्यादा है, ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि राजस्थान में सोलर एनर्जी बहुत ज्यादा है। अरुणाचल प्रदेश फॉर द पावर एंड फॉरेस्ट, जैसे जानते हो कि मैंने बताया था, मैंने आप लोगों को लिखवाया भी था कि हमारा जो स्टॉक रिसोर्सेज है, जो रिजर्व रिसोर्सेज है हमारा राजस्थान के फॉरेस्ट का एग्जाम्पल, उड़ीसा को अरुणाचल प्रदेश के फॉरेस्ट का मैंने स्पेशल जिक्र किया था, स्पेशल मैंने एक्सप्लेन किया था। तो इस तरीके से ये हमारे रिसोर्सेज, मेरे कहने का मतलब है रिसोर्सेज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये रिसोर्स प्लानिंग और रिसोर्स प्लानिंग की कौन से रिसोर्सेज सबसे ज्यादा अमाउंट में कहाँ पाए जाते हैं मैंने आप लोगों को बताया। छोटा नागपुर प्लेट्यू जिसमें आपके 3 स्टेट आते हैं, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, और इसके बाद दक्कन का प्लेट्यू जिसमें आपका कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र का पोर्शन आते हैं। और इसके बाद मैंने बताया सोलर एनर्जी सबसे ज्यादा, और इसके बाद मैंने बताया कि कापर का प्रोडक्शंस क्या नाम से आपका मध्य प्रदेश की पहले एक माइन थी, वो माइंस पहले इंडिया में सबसे ज्यादा कापर का प्रोडक्शन करती थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे राजस्थान की सरिस्का माइंस कापर का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा करती है। इसके पहले जो मध्य प्रदेश की माइंस थी वो काफी बार मैप में पूछी गई बच्चों, उसका नाम है बालाघाट माइंस। ठीक है, बालाघाट माइंस इंडिया का पहले बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन करती थी ऑफ द कॉपर का, लेकिन एट प्रेजेंट टाइम भी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन सरिस्का माइंस ऑफ राजस्थान करता है। और इसके बाद सोलर एनर्जी राजस्थान में बहुत अबाउंडेड है। सेम कंडीशन गुजरात में, इन गुजरात में आपका सोलर एनर्जी के साथ साथ विंड एनर्जी, राजस्थान में भी विंड एनर्जी का काफी एक्सप्लॉयटेशन किया जा सकता है, काफी अमाउंट में प्रेजेंट है। तो इस तरीके से बच्चों ये रहा आपका रिसोर्स प्लानिंग। और अब हम लोगों को रिसोर्स डेवलपमेंट ऑफ द रिसोर्सेज पढ़ना है, और ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज से जो प्रॉब्लम जनरेट हो रही है उनके सोल्यूशन के लिए फर्स्ट अर्थ समिट ही पढ़ना है, एंड एजेंडा 21 एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पूरा एक्सप्लेन करना है। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा काफी इंपॉर्टेंस होगा। नेक्स्ट वीडियो में आज ही हम भेजते हैं बेटा, तो इस तरीके से 2 वीडियोस हम पर डे भेजेंगे, जिनको आप प्रॉपरली उनके हिसाब से नोट्स बनाएंगे। मैं खुद ही बोलता हूँ कि क्या लिखना है क्या नहीं। ओके, थैंक यू।